میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کے بیٹے پاسٹر نتانیل کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور خداوند کے زندہ کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. اوور ٹو یو پاسٹر جی. بسم ربنا سیدنا رب العالمین رب ذوالجلال رب العزت. فخر کبریا جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں دنیا بھر سے چنا اور اس لائق ٹھہرایا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی مہما گائیں، اس کے آواز کے اوپر لبیک کریں کہ یہ سارے پرستش کا شکر گزار ہوں کہ خدا ان کے لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کے نام کو عزت اور جلال. شکر گزار ہوں سسٹر مہرین کا جو آج نظامت کو سنبھالے ہوئے، اور شکر گزار ہوں کہ سسٹر شمیم نے میرے لیے اور کلام کے لیے دعا کی. سسٹر جی خدا آپ سب کو ڈھیر و برکات سے نوازے. اس سے پیش کر کے میں کلام کو شروع کروں، میں پاسٹر لطیف سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاسٹر جی 2 منٹ میں آپ اس غمزدہ خاندان کے لیے تسلی اور تشفی کی دعا کریں، پاسٹر لیاقت کے خاندان کے لیے، اور جو ان کا خاندان کراچی میں ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی عزیزہ کو کھویا. زندہ جلالی آسمانی باپ خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں تو جو اپنے بچوں سے محبت اور پیار رکھتا ہے، اور خداوند تو انہیں اپنا اطمینان اور اپنی تسلی عطا کرتا ہے. خداوند اس وقت خاص طور پر اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو اس وقت غم زدہ ہے، نڈھال ہے، پریشان ہے اس گہرے صدمہ کی وجہ سے، خداوند آپ نے ان کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور یہ آپ کی مرضی ہے، اور خداوند آپ کو پسند آیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. خداوند جتنا عرصہ انہوں نے زمین پر وقت گزارا، خداوند تجھ میں ہو کر گزارا. تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں پاک روح القدس کے وسیلہ سے تسلی اور اپنا اطمینان عطا کرتا ہے. اور خاص طور پر خداوند پاسٹر لیاقت کے گھرانے کے لیے، ان کے عزیز و کارب کے لیے، اور ہماری بہن ویرا بی بی کے لیے، خداوند ان کے تمام بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند ان سب کو اپنے پاک روح القدس کی تسلی اور اطمینان عطا کر. اور خداوند ہم سب اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں، ہر ایک کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ وقتی طور پر خداوند انسان جو مسیح میں سو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ خداوند جب تو آئے گا تو ہمارے وہ تمام عزیز جو ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہم انہیں آسمان پر مل سکیں گے. اس ایمان و یقین کے ساتھ خداوند ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے. عدن میں گناہ ہوا اور گناہ کی مزدوری موت ہوئی. مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں فضل آیا، اور فضل کے ذریعے نجات آئی جو آقا نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے ہمیں عطا کی. اور وہ قربانی ازل سے باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ باندھی کہ وہ دنیا میں جائے، اپنی جان کا نذرانہ اس گناہ جو آدم نے کیا، اور گناہ اور بدی بنی نوع انسان کے ذریعے اتنی بڑھ گئی کہ یہاں تک کہ ملاکی کے بعد
600 साल खुदा खामोश रहा। फिर फरिश्ता ने मरियम को खुशखबरी की नौरीद सुनाई और उससे कहा कि तू बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देगा, निजात देगा। क्योंकि ये यसाया के जरिए खुदा ने अपने बेटे का ऐलान कर दिया था कि जो लोग मौत और अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे उन पर नूर चमकेगा, और जब वो उसकी तरफ फिरेंगे तो निजात पाएंगे। निजात क्यों जरूरी थी, किस लिए थी? कि बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। उसका इस निजात को देने का क्या मंसूबा था? वो क्यों हमें निजात देना चाहता था? क्यों? उसका मतलब ये था कि खुदा हमसे प्यार करता, और ये उसके प्यार ही के तो फैल है कि उसने अपने बेटे को भी रेग ना करते हुए हमारी खताओं उस पर लादा और उसको कुर्बान किया। कलाम मुकद्दस की आज जो तलावत है वो सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत। पास्टर जी प्लीज पढ़िएगा। सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 17 आयत। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। कलाम के पढ़े और सुने जाए बरकत हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर, खुदा आपको बरकत। मेरे अजीजों, हम 16वीं आयत को तो बहुत ही रट चुके कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन ये 17वीं आयत जो है, जो निजात का पैगाम हमें दे रही है, बहुत ही हमारी जिंदगी में अहम मुकाम रखती है। खुदा ने बनीनो इंसान को बचाने का अपने बेटे के साथ मंसूबा बांधा कि वो जाए, उनके गुनाहों अपने ऊपर ले ले, किसी हीलो हुज्जत के बगैर। अगर हम नबियों की बाबत देखते हैं तो जिस जिस नबी को भी खुदा ने चुना उसने कई तरीके से, कईयों ने कहा जी मेरी जुबान गूंग गया, कईयों ने कहा मैं अकेला रह गया हूं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बेटे ने खुशी से बाप के उस मंसूबे को पाए तकमील तक ले जाने के लिए अपने आप को पेश किया। वो ऐसा ताबेदार था कि उसने उस कड़वे घूंट को अपनी निगाह में रखते हुए भी पी लिया। ये थी उसकी मोहब्बत और उसकी बाप की मोहब्बत जो वो हमसे करता है। ये उसकी मोहब्बत ही के तो फैल है कि आज हम उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो निजात याफ्ता है, जिनका जनाब यस्सु ने कफारा दिया हुआ है। जनाब यस्सु ने उनके लिए अपने खून से उनको मोल ले लिया ताकि वो
उनमें शुमार किए जाएं जो उसके खून खरीदे, जो उसके लोग हैं, जिनका तवक्कल जनाब यस्सु पर है कि वो हमारी नजात है, क्योंकि कलाम मुजस्सम हो चुका है। खुदा का उतार जो है, खुदा एक जिस्मानी जिस्म को अपनाते हुए इस दुनिया में आप मौजूद, क्योंकि इसकी वजह ही से जब जनाब यस्सु यरदन में बपतिस्मा लेने को उतरते हैं तो यूहन्ना उसकी तरफ देखकर ये कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और आगे रसूल आजम पालूस रसूल उसको और भी ज्यादा वाजिया करते हैं और उसको कहते हैं, मुबारक है हम सब जो बर्रे की जियाफत में शरीक होते हैं। कैसे? जैसे कि हम जब अशाए रुबानी में शिरकत फरमाते हैं और उसकी जियाफत में, उसके मेज पर खाते और पीते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। ये थी उसकी निजात, ये था उसका निजात का मंसूबा जो वो हमसे रखता है, जो वो हमसे अपने तल्लक को और भी गहरा करता है। और वो ये कहता है, आओ मेरे बाप की बरगजीदा लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाया आलम से पेश तुम्हारे लिए तैयार की गई। मेरा जुआ ले लो, वो हल्का और मजा। ये सब चीजें जनाब यीशु हमारे लिए करता है। और आगे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और भी वाजिया अपने पैगाम को करता है, अपनी उस बशारती तालीम को हर बनी नौ इंसान के लिए पेश करता है। जब वो जकई के घर में जाता है, जब जकई अपने आप को यीशु के साथ जोड़ता है और जनाब यीशु शाद होते हैं उसकी उस अमल से, और वहां वो कहते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए। क्या निजात सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए? हम दावे से कह सकते हैं हाँ, निजात हमारे लिए ही है। निजात देने के लिए ही वो इस दुनिया में आया। कोई भी बशर जब अपने गुनाहों का इकरार करता है, उसके आगे अपने आप को झुकाता है, तो वो हमें गले लगाकर हमारी खताओं को माफ करते हुए हमें उस मकाम तक ले जाता है जो अपनी जिंदगी का मकाम है। क्योंकि इसके लिए रसूल आजम पालूस रसूल बड़े ही वाज़िया तौर पर अपने बेटे तमोथियस को कहता है। पास्टर जी पढ़िएगा, पहला तमोथियस, उसका दूसरा बाप और उसकी चौथी और पांचवी आयत। पहला तमोथियस, उसका दूसरा बाप, उसकी चौथी और पांचवी आयत। जी, पहला तिमोथी से उसका दूसरा बाप और उसकी तीसरी और चौथी नहीं सर, आयत में। चौथी जी, चौथी और पांचवी, चौथी चौथी और और पांचवी। पांचवी आयत। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन। अमीन, शुक्रिया हासिल खुदा को। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हर एक आदमी की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक आदमी अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे और यीशु के साथ जुड़ जाए। और जब वो निजात पाता है तो यकीनन निजात पाने के लिए दरमियानी जो है वो जनाब यीशु
बगैर यीशु की निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे कि बगैर खून बहाए निजात नहीं हो सकती, बगैर खून के गुनाहों की माफी नहीं हो सकती, इसी तरह बगैर यीशु पर ईमान लाने के निजात नहीं मिल सकती। जब आप उसके ऊपर ईमान लाते हैं, जब आप उसके ऊपर अपना अकीदा जोड़ते हैं, तो आपको निजात मिलती है। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भेजा उस मोहब्बत को साबित करने के लिए जो अदन में उसने हवा और आदम से की। क्या किसी को यह शर्फ हासिल है कि खुदा उनके बीच में बैठकर बातें करे? ये आदम और हवा को ही नसीब हुआ कि वो उनके बीच में बैठा, उनसे बातें करता था। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की, खुदा ने जानते हुए भी उनको पुकारा कि तुम कहां हो, और उन्होंने जवाब दिया कि हम डर गए थे, कि हम नंगे थे। क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों को पहचान लिया था। आज भी जब जनाब यीशु हमें पुकारता है, तो हमें ये एहसास बावर करवाता है कि हम गुनाहगार हैं। लेकिन एक तसल्ली हमें मिलती है, एक हमें खुशी की नवीद सामने ले आती कि जनाब यीशु ने तो मेरा कफारा दे दिया हो, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं अपने गुनाहों का इकरार करूं, उससे माफी मांगू। एंड उसी तरह जैसे कि मुशर्रफ बेटे ने किया, मुशर्रफ बेटे ने क्या किया? उसने कहा, मैं आसमान और जमीन पर तेरा गुनाहगार हूं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर। तो बाप ने क्या किया? उसको गले लगाया। आज भी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, वो हमें गले लगाने के लिए एक सेकंड नहीं लगाता, बल्कि हमारी खताओं को माफ करता है, हमें मोहब्बत से अपने गले लगाता और हमें उस बादशाही का वारिस बनाता है जो वो बादशाही देने के लिए इस दुनिया में आया। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम उस निजात को पाने के लिए उसके साथ जुड़े? क्योंकि रसूल आजम पौलुस रसूल इफिसियों के नाम में बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, उसने अपनी मर्जी के भेद को अपनी खुशनुदी के मुताबिक हम पर जाहिर किया। क्या किया? अपनी मर्जी से, किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से, और खुशी की नवीद को हम पर जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खताओं के लिए मुआ कि हमें छुटकारा दे, हमें हमारे गुनाहों से मुखलसी दे, हमारे गुनाहों को धो दे, हमें ऊन की मानद उजला कर दे। मेरे अजीजों, खुदा का फजल जाहिर करता है कि तमाम लोग, वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा उनको गले लगाते हुए निजात फराहम करता है। क्योंकि लफ्ज वहां पे वो ये नहीं कहा गया कि वो यहूदियों के लिए आया, वहां पे लिखा गया है कि वो ही अपने लोगों को
उनके गुनाहों से रहाई दे। अपने लोगों को, अपना कौन है? अपना वो है जिनका रिश्ता, जिनका तल्लक जनाब यीशु के साथ। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे यहूदी है, अजमी है, अरबी है, फारसी है, नहीं, बल्कि वो अपना लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया गया है। किसी के लिए वहां पे ये निशानदही नहीं की गई कि जरूरी है कि वो उन्हीं के लिए, नहीं। जब वो गडरियों पे रिश्ते के पैगाम की आवाज आती है तो वहां पे भी दाऊद के शहर की बात होती है। मेरे अजीजों, उसने हमें अपनी मोहब्बत में सींच लिया है। उसने अपने साथ हमें जोड़ दिया। अब हमारा काम है कि हम उसके साथ, उसने अपने मिशन को वाज़िह तौर पर बयान किया कि वो खोए हुओं को बचाने के लिए, निजात देने के लिए आया। उसने अपने मिशन को, अपने बाप के उस मंसूबे को आए तकमील तक उस लाजवाल कुर्बानी के जरिए पूरा कर दिया है। लेकिन क्या हम उस कुर्बानी को अपने ईमान के साथ निभा रहे हैं? क्या हम उसके इस दुनिया में आने के मिशन को अपने कामों से पूरा कर रहे हैं? मेरे अजीजों, रसूल आज़म सबसे बड़ी मिसाल है। हाँ, दूसरे शागिर्द भी हैं, लेकिन जनाब यस्सु के उस अजीम मिशन को गैर अक़वाम में ले जाने का सेरा रसूल आज़म, क्योंकि वो खुद कहता है, क्योंकि मैं खुशखबरी से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि खुदा की कुदरत है जो हर शख्स को निजात देती है। आगे उसने सवालिया निशान डाल दिया, जो ईमान लाता, जो ईमान लाता। मेरा ख्याल हम इसको पढ़ लेते हैं। रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत। पास निकालिएगा, रोमियो उसका पहला बाब। मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। क्या उसने कहा इसमें? ये है अंजील की कुदरत, ये है जनाब यस्सु का पैगाम, ये है जनाब यस्सु का वो अजीम मकसद जो इस दुनिया में आना है। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, यानी अंजील की तालीमात से शर्माता नहीं, इसलिए को हर ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत, यानी खुदा की कुदरत। आगे वो कहता है, इस वास्ते के खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, हमें निजात हासिल करने के लिए जनाब यस्सु को अपने घर में दावत देनी, अपने घर उतारना चाहिए।
वो तो ये कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, जो मेरी बात सुनेगा, दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और उस शख्स के साथ खाना खाऊंगा। कितना बड़ा शर्त, बादशाहों का बादशाह, और हम जैसे लोगों के साथ बैठना चाहता है। मेरे अजीजों, वो इसलिए बैठना चाहता है क्योंकि हम भी उसकी मिरास के हिस्सेदार हैं। क्योंकि कलाम इसकी शहादत देता है मेरे अजीजों, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो हम कौन हुए? हम भी रईस, हम भी बादशाहों में शामिल हो गए। इसीलिए बादशाह बादशाही के घर में आता है। आप सब उसके खून से धुले हुए लोग हैं। आप निजात याफ्ता, आप उन लोगों में शामिल है जो इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करें, उस तख्त अजीम पर बैठकर जो आका ने आपके लिए सजा के रखा। मेरे अजीजों, करना क्या? करना सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार, जनाब यीशु पर ईमान की मोहर लगाना, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करना और उसको ये कहना, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार, मेरी खताओं को माफ कर। क्योंकि इंसान होते हुए हम खता करते, लेकिन वो माफ करने में कादिर मुतलक है। हमें माफ कर और हमें अपने जैसा कर ले। मेरे अजीजों, कलाम अल्लाह हमें ये सिखाता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह उद्धार बनकर इस दुनिया में निजात देने के लिए आया। क्योंकि कलाम मुजस्सम हो चुका है, वो फजल और सच्चाई के साथ मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसकी मोहब्बत, उसकी आजिज़ी को, उसके हमें गुनाहों से रहाई देने को देखा है। कोई भी शख्स ये अलानिया नहीं कह सकता कि मैं तुमको निजात देने आया। क्या कोई पैगंबर ऐसा पैगाम दे सकता? क्योंकि यीशु को ये इख्तियार हासिल कि वो आपके गुनाह बांध भी सकता है, वो आपके गुनाह माफ भी कर सकता है। क्योंकि उसने अपने शागिर्दों की को ये तालीम दी कि जिनके गुनाह तुम बांधोगे वो बांधे जाएंगे, जिनके माफ पास्टर करोगे जी आपकी आवाज वो माफ। आ रही पास्टर जी की तो आवाज आ रही है, कंटिन्यू पास्टर जी। जिनके गुनाह तुम बांधोगे, जिनके गुनाह तुम बांधोगे वही फिर आगे चलकर वो ये एक अलानिया कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। क्या ऐसा कोई भी शख्स जो इस रूए जमीन पर आया उसको इतना इख्तियार था? मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। अगर नबियों की बात देखा जाए, साहिब अंबिया, अंबिया कराम, अंबिया असगर, अंबिया अकबर, जब भी उन्होंने कुछ करने के लिए चाहा तो उन्होंने अपने रब के सामने उस सवाल को रखा, उस आस को रखा कि ऐ खुदावन हमारे लिए कर दे। लेकिन यहाँ पे यीशु बड़ी खूबसूरती के साथ है ये अलानिया तौर पर कहता है, अपनी चारपाई उठा, चल फिर
اور وہ بندہ جو 38 برس سے بیمار ہے، وہ اچھلتا کودتا اپنی چار پہ اٹھا، اندھے اس کے پاس آتے، کیا چاہتا ہے تو؟ میں بینا ہونا چاہتا ہوں، یا جیسا تو چاہتا ہے تیرے لیے ویسا ہی بینا ہو گیا۔ 4 دن کا لازر، یسوع نے اس کو پکارا، کفن سمیت قبر سے باہر ہو گیا۔ یہ تھے اس کے اختیارات، اوکے؟ وہ خود خدا ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع نے ہمیں نجات ابدی دے دی۔ یسوع نے اپنے باپ کے اس منصوبے کو پورا کر دیا۔ کلام مجسم ہو چکا ہے، کلام جسم بن چکا ہے۔ کئی ہزار سال پہلے لوگوں نے اس کو اپنے درمیان دیکھا ہے، اس کی گواہی دیتی، اور کلام اس کی شہادت دیتا ہے کہ وہ انسان بن کر اس انسانیت پر جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بنائی تھی اس میں رہا۔ ہم نے اس کے کاموں کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، اس کے قبر اور موت کے فتح پانے کو دیکھا، اور اس کے وعدے کے اوپر آج بھی زندہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے کے لیے پھر واپس آؤں گا۔ میرے عزیزو، ہمیں آج اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سے جانے انجانے میں خطا، لیکن تیری یہ خوبی ہے کہ تو معاف کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں معاف فرما اور ہمیں اس نجات ابدی کا وارث بنا جس کے لیے تو آیا، اور ہمارے ساتھ رہنے کا شرف عطا کیا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے اور اس نجات ابدی کو پاتے ہوئے اس کا شکر جانائیں۔ آمین آمین آمین۔ خدا سب کو بڑی برکت۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی اس بابرکت کلام کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حسب معمول آپ نے بہت ہی بابرکت کلام آج ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند آپ کو بہت